Shalom, shalom, hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus of Nazareth. सबको जय यीशु मसीह की, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रभु आज की संध्या हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं। सृष्टि के स्वामी, सृष्टि के तारनहारे, सृष्टि के रचिता, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तेरे लहू के साए के नीचे आते हैं प्रभु, हमारी सोचों को, प्रभु हमारी कल्पनाओं को, हमारी भावनाओं को, हमारे इरादों को अपने लहू से धो के शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। प्रभु हम अपना जीवन आपके चरणों पे रखते हैं। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए सभी। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रमन खान के लिए, दिल्ली से भाई ललित मेहरा के लिए, चिया बेटी के लिए। प्रभु प्रार्थना करता हूँ रोहित मसीह भाई के लिए, प्रार्थना करता हूँ ब्रदर इमैनुअल होता के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी पत्नी के लिए, हरपाल बाजवा जी के लिए, उनकी पत्नी बच्चों के लिए, तनुजा सेठ के लिए, के घराने के लिए। प्रभु मैं आपके लहू को छिड़कता हूँ यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपका धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु। प्रभु आपकी महिमा, साबी सुरजीत को आपके लहू में छिपाता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घराने के ऊपर आपकी आशीष हो, डेजी वीएस के लिए के घराने पे आपकी आशीष हो। Lord, I bless them in the name of Jesus. Brother Sahil from Pakistan and his household, I bless them, Father. I pray for Mr. Vinod Christian from Canada. May your hand be upon him, Lord, upon his sons and upon his grandchildren in the name of Jesus, upon his daughter-in-laws, upon all his loved ones in Canada and also in Gujarat. Lord, you bless them. Hallelujah. Lord Jesus, I pray for Sunita Guria Kansavar. Bless her, Father, in the name of Jesus. Bless Brother Amrish Kumar. I pray for Devinder Kular from Britain. May your hand be upon her husband, upon her children. Father, I speak the angels. Father, I speak your destiny and purpose. I speak health and healing around her. And Father, I bind her and her household with the blood covenant that Jesus instituted when he said, this is the cup of the blood of the new covenant, and this is my body being broken for you. Lord, I bind with that covenant her family. I bless Brother Ravi Prakash Gupta and his family and his household. May you bless him, Father. May you protect, may you keep your hand around him. I pray for Light of Jesus, your daughter. May you bless her. May your hand be upon her. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dhanyavad. I bless Sister Reena Khan from Delhi, Brother Raman's wife, and her daughters and her mother-in-law. I cover them all under Jesus' holy blood. Father, I bless Brother Malkiyat Gill and his family. खुदावन तूने आशीष दे, अपने लहू में छिपा. Lord, I bless Wrinkle Gaba Kathuria. May you bless your daughter. May you bless her household, her family. Lord, I draw the hedge of the blood of Jesus around her household. And I speak the blessing that you blessed her father Abraham with. I pray for Prabhudeep and his newly wedded wife, his father and his mother. I cover them all under the blood of the Lamb. Hallelujah. Lord, I bring before you Avtar Burjman from Chandigarh, his mother, his sisters, his household. Lord, I speak revival. Father, I speak birthing of the purposes of God into this young man's life. Hallelujah. I draw him closer to you through the Holy Spirit. Lord, I plead the blood of the Lamb. I pray for Sister Agnes Lal. Bless her ministry. Lord, teach her your word. Teach her show her your glory. Hallelujah. Grant her wisdom that comes from above. Hallelujah. प्रभु मैं जगीर मसीह जी के लिए हिमाचल में उनके घराने को आपके लहू में छिपाता हूँ. आशीषित करें अपने लहू में भाई जगीर मसीह को, बरकत दें, खून में छिपाएं, रक्षा करें. Lord, I bless Darshan Singh from Jalandhar. May your hand be upon him, Lord. May your blessing be upon him. Hallelujah. I pray for everyone that is listening. Lord, I pray for everyone that will listen me later on. Everyone that will come under the sound of your servant. Lord, they will come under your blessing, I pray thee.
हालेलुया, योर ब्लेसिंग, योर अनॉइंटिंग, योर फेवर लॉर्ड गॉड। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तेरे पवित्र आत्मा की कुदरत, तेरे पवित्र आत्मा की कुव्वत लोगों को छुए खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, तेरा धन्यवाद, 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 तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो यीशु मसीह। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ, तुझे महिमा देता हूँ यीशु मसीह। यीशु मसीह, जलाली परमेश्वर, ब्लेस विनोदनी क्रिश्चियन फ्रॉम कैनेडा, हील हर स्पाइन राइट नाउ, heal her vertebrae in the name of Jesus of Nazareth. I release anointing over Vinodini Christian, and I also release the same anointing over Renu Bala, my wife. May that same unction flow, Father. Healing anointing, healing virtue. Hallelujah. Thank you that healing is a purchased reality. Thank you that healing is irrevocable part of the covenant that you made with us, Lord. Healing is part, inseparable part of the atoning work of Jesus. Thank you, you heal us, Lord. And you want us to enjoy good health. खुदावन, ताकि हम तंदुरुस्त देह में तेरी इबादत करें, तेरी आराधना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद। नवप्रीत को भी आपके लहू में छिपाते हैं, दिल्ली में आपके खून की कुदरत के साए के नीचे लाते हैं। प्रभु ये सब प्रार्थनाएं, ये बिनतियाँ तेरे हजूर में उठाते हैं यीशु नासरी। हालेलुया। प्रभु लवदीप को अपने लहू के नीचे रखें। आपकी ब्लेसिंग को खोलता हूँ खुदावन। धन्यवाद हो, धन्यवाद। Lord, I pray right now for Mr. Kakkad from Delhi. Lord, I pray for Mr. Kakkad that your spirit will heal that man. Lord, I pray that this vicious virus will relent moving into his DNA, into his RNA. Father, that this virus will wither out, will dry out in the mighty name of Jesus, that your healing will flow in Mr. Kakkad's body. Hallelujah. And Lord, you will heal him. You will touch him. You will visit him. You will reveal yourself to him. And you will show him your glory. Wonderful Jesus, you are living. You are risen King. You conquered darkness. You conquered Hades, hell. You conquered death. You conquered the underworld, Lord Jesus. You rose again on the third day. तेरा धन्यवाद हो प्रभु। दविंदर भाई जो जम्मू में, इनको भी आपके लहू में देता हूँ। परमिंदर सिंह को आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावन। मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ अमनदीप कुमार के लिए, आपके लहू की कुदरत को अमनदीप पे खोलता हूँ। एंड आई ऑल्सो ब्लेस करमजीत कौर, मे योर हैंड बी अपॉन करमजीत। एंड लॉर्ड आई प्रे फॉर तलजिंदर कौर, खुदावन जो हॉस्पिटलाइज हैं, तलजिंदर कौर के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी। आपके लहू में तलजिंदर कौर को छिपाता हूँ। आपका धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। आपका धन्यवाद हो, महिमा हो प्रभु। दयालु यीशु, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, आज की संध्या जब हम आपके वचन पे मनन करते हैं प्रभु अपने वचन से हमें बुद्धि, ज्ञान, प्रकाश और प्रभु सबसे बढ़ के अपनी पवित्र हजूरी से भरिएगा। हालेलुया। आपका जलाली नाम हमारे जीवन में ऊंचा हो, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तो हम पिछले 3 दिन से अध्ययन कर रहे हैं प्रेरितों के काम में। हमने शुरू किया था ये सिलसिला प्रेरित पौलुस की यात्रा से, लेकिन उससे पहले प्रेरितों के काम 15 अध्याय में प्रेरित पौलुस और परमेश्वर के दास बरनबास में जो नोकझोंक हुई, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग हुए, और उसका कारण था जॉन मार्क। और फिर हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन में 2 तीमुथियुस 4:11 और हमने पढ़ा कुलिस्सियों 4:10 में कि प्रेरित पौलुस कैसे एक दूसरे को क्षमा करते हैं और अपने रिलेशनशिप को, रिश्ते को बहाल करते हैं। हालेलुया। फिर हमने देखा कि प्रेरित पौलुस एक अद्भुत दर्शन पाता है रात्रि काल जब वो प्रार्थना करता है ट्रोवास में, क्योंकि परमेश्वर ने उनको जिस जिस इलाके में उन्होंने जाना चाहा वहाँ से जाने से रोका। फिर प्रभु का दास प्रभु के चरणों में बैठा और प्रभु ने एक मार्ग खोला ग्रीस के लिए, मकदूनिया के लिए, हालेलुया, मैसेडोन के इलाके के लिए। और प्रेरित पौलुस जब वहाँ पे गया, हालेलुया,
तो वहाँ पे हम वचन में हमने देखा सबसे पहले एक स्त्री मिली जिसका नाम था लुदिया। हालेलुया। और उसके बाद हमने देखा कि उसने तुरंत प्रभु को ग्रहण किया, पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के दासों को बहुत ज़ोर से विनती की, मिन्नत की कि वो उसके घर में ठहरें। और प्रभु के दास फिर उनको लूका ने भी ज्वाइन किया, शायद एपफ्रोडिटस भी आ गए, सभी वहाँ पे रहे। और फिर हमने पढ़ा कि प्रेरित पौलुस वहाँ से प्रार्थना के लिए निकलते थे। किसी लड़की में दुष्ट आत्मा थी और प्रेरित पौलुस ने, उसकी आत्मा दुखी हुई जब दुष्ट आत्मा से ग्रसित लड़की प्रभु के दासों की पब्लिसिटी करती थी। वो उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाला। उसके बाद उनकी जान जोखिम में पड़ी, मजिस्ट्रेट के आगे पकड़ के ले जाए गए, लोगों ने पीटा, पुलिस ने मारा, जेल की काल कोठरी में डाला। आधी रात के समय धन्यवाद स्तुति गान कर रहे थे तो प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि भूकंप आया। हालेलुया। और उस भूकंप से परमेश्वर के कलाम में लिखा है जेल की नींवें हिल गईं। हालेलुया। जेल की नींवें हिल गईं। धन्यवाद यीशु मसीह का। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है सारे कैदी आज़ाद हो गए और दरोगा के घराने ने अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। तो फिलिपियों का कनेक्शन है प्रेरित पौलुस के बरनबास के साथ हुए झगड़े का और प्रेरित पौलुस का त्रोआस में लैंड करने का और वो इलाही स्वर्गीय दर्शन का। तो मैं आपको बता रहा था कि जब स्वर्गीय दर्शन मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्मूथ सेलिंग मिलेगी, बेड ऑफ रोजेज़ मिल जाएगा। बहुत सी समस्याएं आएंगी, तूफ़ान आएंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन प्रभु आपके अंग संग रहेगा। फिलिपियों में एक अद्भुत कलीसिया की स्थापना हुई। हालेलुया। ये अद्भुत कलीसिया है, जनरस कलीसिया है। प्रेरित पौलुस इस कलीसिया की अप्रिशिएशन करता है, शलाघा करता है। इस कलीसिया के विषय में बहुत खूबसूरत बातें कहता है प्रेरित पौलुस कि इन्होंने परमेश्वर के दास की सेवा में पैसा बोया। और प्रेरित पौलुस यहाँ तक कहता है कि किसी और कलीसिया ने ऐसा नहीं किया। प्रेरित पौलुस ये भी कहता है कि ना केवल तुमने मेरी सहायता की जब मैं तुम्हारे पास आया, बल्कि जब मैं दूर दराज जाता था सेवा में, तुम लोग मेरे लिए पैसा और सहायता की चीज़ें भेजा करते थे। और परमेश्वर का दास हृदय से कृतज्ञ है इस कलीसिया के लिए और बहुत इनसे प्यार करता है और बहुत इनके लिए प्रार्थना करता है। इसलिए नहीं कि वो भौतिक चीज़ें देते हैं। मैंने बताया आपको, प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहता, फल चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन उन लोगों का प्रेरित पौलुस के जीवन में बोने का अभिप्राय ये है कि वो प्रभु से प्रीति करते हैं और प्रभु के काम के लिए, प्रभु के दासों के लिए बोते हैं फराग दिली से। तो ये जो फिलिपी का इलाका है ये रोमन कॉलोनी है, मैंने आपको बताया। ज़्यादा जनसंख्या रोम के रिटायर्ड सिपाहियों की है। रोम के सिपाहियों को एक नेशनल पैट्रियोटिज्म का कल्चर सिखाया जाता, राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद। और रोमन कल्चर में, इन द रोमन कल्चर, सीजर्स, द एम्परर्स, दे वर डीइफाइड, they were proclaimed as gods, some were even demigods. Roman emperors wanted their subjects to worship them. So that kind of occultic, demonic culture was instituted by the Roman government. It was political treason and it was a criminal offense if people did not bow down and worship the Caesars. Caesar title हुआ करते थे, तो सीजर जो होते थे उनकी आराधना की जाती थी। लेकिन प्रेरित पौलुस एक नए राजा को, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, पेश कर, वो तो स्वाभाविक बात है कि कुछ ना कुछ होगा। तो उस परिवेश में प्रेरित पौलुस को बहुत सताव भोगना पड़ता है। मैंने आपको बताया प्रेरित पौलुस उसके विषय में कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है कि कितने दुख, कितने कष्ट, कितनी मुसीबतें, कितना संघर्ष उन्होंने झेला है, दुखों में से गुजरे हैं, मुसीबतों में से गुजरे हैं। उनकी जान के पीछे जूइश लोग पड़े थे, उनकी जान के पीछे रोमी लोग पड़े थे, उनकी जान वो लोग लेना चाहते थे
जिन लोगों का कारोबार प्रेरित पौलुस के सच्चे प्रचार के बाद बंद हो रहा था। तो प्रभु का दास अद्भुत ये पत्री लिखता है, ये बहुत अनूठी पत्री है। इस पत्री में एक सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री मेरे संग आप निकालें, हालेलुया। फिलिपियों की पत्री निकाल लीजिए जल्दी से प्लीज़, और उसका दूसरे अध्याय में आइए। ये एक खूबसूरत सेक्शन प्रेरित पौलुस यहाँ पे लिखता है। अगर इसकी राइटिंग स्टाइल देखेंगे ग्रीक में, ये एक पोम है, एक कविता है जो दूसरे अध्याय में लिखता है प्रेरित पौलुस। तो क्या कहता है प्रेरित पौलुस, सुनिए। फिलिपियों की पत्री का दूसरा अध्याय, इफ़ देयर बी देयर फॉर एनी कंसोलेशन इन क्राइस्ट, एनी कंफर्ट ऑफ लव, एनी फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट, इफ any bowels of mercy, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord and one mind. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, and each esteem other better than themselves. प्रेरित पौलुस देखता है कि यह कलीसिया बहुत धनी है और परमेश्वर के काम के लिए बहुत पैसा लगाती है, और प्रेरित पौलुस ये भांप रहा है कि दिखावा करने की या लोगों के आगे थोड़ा पब्लिसिटी करने की, हम बहुत बोते हैं, हम तो बहुत बड़े हैं, ऐसा करने की थोड़ी सी भावना कलीसिया के अंदर पनप सकती है। तो प्रेरित पौलुस क्या कहता है 3 वचन में, लेट नथिंग बी डन थ्रू स्ट्राइफ और वेन ग्लोरी। ये झूठा जलाल, दुनिया की वाहवाही हासिल करने के लिए कुछ मत करो। जो भी कुछ करो अपने मन में हलीम रह के और दूसरों को अपने से उत्तम जानो। मैं समझता हूँ मसीहों को फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 3 वचन पे अमल करना चाहिए। दूसरे को अपने से उत्तम जानो। फिर प्रेरित पौलुस क्या लिखता है 4 वचन में, लुक नॉट एवरी मैन ऑन हिज ओन थिंग्स, बट एवरी मैन ऑल्सो ऑन द थिंग्स ऑफ अदर। दूसरों के लिए कंसिडरेट रहो, दूसरों के विषय में सोचो। और 5 वचन में आइए, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। अब एक मैजेस्टिक पोम लिखता है प्रेरित पौलुस, एक पोइट्री है। पूरी की पूरी फिलिपियों की पत्री इस पोइट्री के इर्द गिर्द घूमती है। ये कविता क्या है? इस कविता का जो लाइफ लाइन है, इस कविता का केंद्र बिंदु, इस कविता का हीरो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। देखिए क्या कहता है, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। जो मन मसीह के अंदर था वही मन तुम्हारे अंदर हो। क्या लिखता है प्रेरित पौलुस, हु बीइंग इन फॉर्म ऑफ गॉड थॉट इट नॉट रॉबरी टू बी इक्वल विद गॉड। कि प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर था, 100% परमेश्वर है। यीशु मसीह 100% परमेश्वर रहेगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रेरित पौलुस क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या किया, थॉट इट नॉट रॉबरी टू बी इक्वल विद गॉड। यीशु मसीह ने पृथ्वी पे जब वो मानव की देह में आया, यीशु मसीह ने जब हांड मांस का शरीर लिया, और वो शरीर आपके और मेरे जैसा शरीर नहीं है, वो परमेश्वर के अविनाशी बीज से उत्पन्न हुआ है। वो कलाम, वो वचन, वो ममरा, वो दबार जो जिब्राइल ने मरियम के ऊपर बोला, और परमेश्वर जिब्राइल ने कहा द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल ओवरशैडो यू। परमेश्वर के जलाल ने मरियम को ढांप लिया, और परमेश्वर के तेज से, परमेश्वर के जलाल से मरियम गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह को कहा गया द चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट। मत्ती लिखता है पवित्र आत्मा का पुत्र है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के तेज के द्वारा, परमेश्वर के नूर के द्वारा उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह की देह हमारी देह से भिन्न है, पारलौकिक देह है। हमारी देह हमारे पिता के बीज से उत्पन्न हुई है, पिता के स्पर्म से बनी है। हमारी देह में एक्स या वाई हमारे पिता से और हमारी माता के 23 ऑटोसोम, 23 क्रोमोसोम से हम बने हैं। पर यीशु मसीह की देह यहोवा के जलाली तेज से बनी है। हालेलुया। वो अद्भुत है, पारलौकिक है, जलाली है, उसकी देह अनूठी है। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस क्या लिखता है? प्रेरित पौलुस लिखता है पहला आदम मिट्टी का है, पृथ्वी का है, नाशवान है, लेकिन आखिरी आदम स्वर्ग का प्रभु है। हालेलुया। उसने ये नहीं लिखा कि जैसे पहला आदम मिट्टी से बना वैसे दूसरा आदम भी इसी मिट्टी से बना। प्रेरित पौलुस कहता है पहला आदम मिट्टी से बना, नाशवान है,
But second Adam, the last Adam, is the Lord from heaven. He is the Lord from heaven. Hallelujah. The Lord of heaven entered the womb of Virgin Mary. Hallelujah. When Mary gave birth to Jesus, he was the King of glory. Hallelujah. ये भिन्नता है यीशु मसीह की देह में और हम सब की देह में। वो जलाली देह में होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर बनना नहीं चाहा पृथ्वी पे। ये नहीं कि यीशु मसीह कभी परमेश्वर नहीं था, यीशु मसीह सदैव परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन उसने परमेश्वर होने के अधिकार को, परमेश्वर होने की सामर्थ्य को इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। वो पृथ्वी पे मानव बनकर आया और मानव के सीमित दायरे में उसने अपने आप को महदूद कर लिया। हालेलुया। अद्भुत बात लिखता है इस कविता के रूप में परमेश्वर का दास पौलुस 2 अध्याय के 6 वचन से कि यीशु मसीह ने उसे यूजर्प नहीं करना चाहा। परमेश्वर वो था, लेकिन परमेश्वर होने के अधिकार को उसने वश में नहीं रखा। वो जो था वो भी नहीं बना। और किस चीज़ की तरफ इशारा करता है प्रेरित पौलुस पहले आदम की तरफ इशारा करता है। पहले आदम का रिबेलियन, पहले आदम ने जो बलवा किया, हालेलुया, उसकी ओर इशारा करता है कि पहला आदम, उसके सामने जब शैतान ने आके एक ऑफर रखी कि तुम ये फल खाओगे तो परमेश्वर जैसे हो जाओगे, उसने, आखिरी आदम ने, वो स्वयं परमेश्वर है, देहधारी परमेश्वर है, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वरताई को वश में रखना नहीं चाहा। लेकिन पहले आदम ने, उसे परमेश्वर ने नूर से बनाया। परमेश्वर ने निशामा खयम उसके अंदर डाला अपने जीवन का श्वास। बट ही चोज द ऑफर दैट Satan gave him, you shall be like God. He did not realize he was already like God. He was in the express image of God. He was in the likeness of God. Two powerful, distinct Hebrew words, Shalem, Zalem and Demuth. God created in his image and in his likeness. लेकिन पहले आदम ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यीशु मसीह ने, वचन में लिखा, अपने आप को खाली कर दिया। हालेलुया। वचन में लिखा है उसने कैप्चर नहीं करना चाहा इक्वालिटी विद गॉड, और उसने क्या किया, उसने इक्वालिटी, वो परमेश्वर है लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं बनाया, और वचन में आगे लिखा उसने अपने आप को खाली किया। हालेलुया। मुझे ये वचन समझ नहीं आता। वचन में लिखा है ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड भी यीशु मसीह को समा नहीं सकते, सारी कायनात उसे समा नहीं सकती। उसने कायनात को बनाया है, इसलिए कायनात कभी उसे समा नहीं सकती है। यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किस में किया? जैसे एक छोटे बर्तन को अगर पानी से भर लो, उसे बड़े बर्तन में आप खाली कर सकते हो, तो कहाँ उंडेला यीशु मसीह ने अपने आप को? ये अद्भुत एक मिस्ट्री है। वचन में लिखा है, ही एम्प्टीड हिमसेल्फ, ही partook humanity, he became a man just like you and me, hallelujah, and allowed himself to be humiliated. यीशु मसीह ना सिर्फ उसने खाली किया, ना सिर्फ वो मनुष्य बना, बल्कि उसने अपने आप को हलीम कर दिया, और यहाँ तक हलीम किया कि क्रूस की शर्मशारी से भरी मौत यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। ये एक अद्भुत कविता लिखता है प्रेरित पौलुस, यहाँ पे लिखता है, बट मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेपुटेशन एंड टुक अपॉन हिम द फॉर्म ऑफ अ सर्वेंट एंड वॉज मेड इन द लाइकनेस ऑफ मैन, बीइंग फाउंड in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God hath highly exalted him. Hallelujah. उसने अपने आप को दीन किया, खाली किया, अपने आप को हलीम किया। वो अलफ नंगा क्रूस पे लटका था, जो पूरे ब्रह्मांड को नूर की चादर से ढांकता है, वो बिना बस्तर के क्रूस पे लटका था। वचन पे लिखा है, वेयरफॉर, इसलिए, गॉड हैथ हाईली एग्जॉल्टेड हिम, परमेश्वर ने यीशु मसीह को सबसे ज़्यादा ऊंचा किया। हालेलुया, हो हालेलुया, वो सबसे ऊंचा किया गया प्रभु यीशु मसीह, एंड गिवन हिम अ नेम विच इज़ अबव एवरी नेम। यीशु मसीह को नाम दिया पिता ने, जो नाम सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया।
ताकि हर एक घुटना, that at the name of Jesus every knee should bow, of the things in heaven and of the things in the earth and of the things under the earth। पृथ्वी पे, स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम में झुक जाए। और 11 वचन में लिखा है हर एक जीभ अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये मेन सेंटर कविता है जो प्रेरित पौलुस यहाँ पे लिखता है, यीशु मसीह के लिए कविता गाता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 5 वचन से लेके 2 अध्याय के 12 वचन तक ये कविता को गाता है। अब पूरी पत्री इस कविता के इर्द गिर्द लिखी गई है। जब आप पहला अध्याय पढ़ते हो, पहले अध्याय के 1 से 11 वचन में प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया की जनरोसिटी को, जो उनके अंदर करुणा है, प्रभु के काम के लिए बोलते हैं वो प्यार से, उसको प्रेरित पौलुस अप्रिशिएट करता है। और प्रेरित पौलुस उन्हें ये बताता है कि जो अद्भुत काम परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर शुरू किया है उसे वो संपूर्ण भी करेगा। हालेलुया। और फिर जब हम फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय के 12 से 26 वचन तक आते हैं तो प्रेरित पौलुस अपने जीवन के विषय में लिखने लगता है कि कैसे जेल में प्रेरित पौलुस रोम की जेल के अंदर है और कैसे उसका जेल के अंदर जाना प्रभु की महिमा के लिए है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, प्रेरित पौलुस को रोम की जेल में रोम की सरकार ने कैप्टन रैंक के सिपाहियों को लगाया था और वो बहुत सख्त निगरानी रखते थे प्रेरित पौलुस के ऊपर। उनमें से कई रोमन जो कैप्टन थे, हाई ऑफिशियल थे, रोमी फौजी, उनका जीवन बदल गया प्रेरित पौलुस के अद्भुत जीवन को देख के। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस बताता है कि सब बातें मिल के भलाई पैदा कर रही हैं। मेरा जेल में जाना भी प्रभु की महिमा के लिए है। और अगर हम पढ़ें 12 से 26 वचन तो प्रेरित पौलुस अपने दिल में ये कहता है कि मैं छूट जाऊंगा जेल से तो प्रभु का प्रचार करूंगा, प्रभु की महिमा का वर्णन करूंगा और परमेश्वर के लिए संगतियां खड़ी करेंगे और भाइयों बहनों को प्रभु के लिए जीतेंगे। और यदि मैं एग्जीक्यूट हो गया, मर गया, तो प्रेरित पौलुस कहता है, हालेलुया, क्या कहता है? जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। हालेलुया। To live is Christ and to die is gain. Either way I am blessed. If God chooses me to die the death of a martyr for him right now, I will praise God. For I will immediately go and meet with my Lord. मैं एकदम जाके अपने प्रभु से मुलाकात करूंगा और अगर मैं जीवित रहूं तो प्रभु का काम करूंगा, प्रभु के लिए रूहें जीतूंगा। लेकिन प्रेरित पौलुस चाहता ये है कि प्रभु के लिए जीवित रहे और प्रभु के लिए और बहुत सारी आत्माएं जीत के प्रभु के चरणों में ले आए। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस बताता है कि मैं किसी भी हाल में रहूं, मुझे नफ़ा ही नफ़ा है, लाभ ही लाभ है। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय में ये अद्भुत कविता जो मैंने अभी आपको बताई, प्रेरित पौलुस इस कविता के विषय में बात करता है। और उसके तुरंत बाद जब आप पढ़ते हो फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 19 से 30 वचन को आप खुद पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री 2 के 19 से 30 को जब आप पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस एकदम क्या सिखाता है कि जो जीवन यीशु मसीह का है 2 अध्याय में, फिलिपियों 2 अध्याय में, ये जीवन हमारा होना चाहिए। हमारा रोल मॉडल है यीशु मसीह। इस तरह का जीवन हमारा होना चाहिए। ये जो कविता मैं गा रहा हूँ, प्रेरित पौलुस कहता है। फिर वो मिसाल किसकी देता है? फिलिपियों 2 के 19 से लेकर 30 तक तिमोथियस की मिसाल देता है कि तिमोथियस एक जवान भाई है और वो प्रभु की सेवा में संलग्न है, परमेश्वर के वचन से प्यार करता है, छोटी आयु से परमेश्वर के वचन को अपनी नानी से, अपनी माता से सीखा है और परमेश्वर का वचन उसके अंदर जलता है। हालेलुया। क्या कहता है? प्रेरित पौलुस से कहता है तिमोथियस को कि जब मैंने तेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना की, जो पवित्र आत्मा की शक्ति तेरे अंदर उतरी, प्रेरित पौलुस उस शक्ति को, उस आग को हवा दे। जैसे कोले के अंगार होते हैं, उस कोलों की आग को बरकरार करने के लिए पंखा झलते हैं, वही शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है। फैन द फ्लेम दैट इज विद इन यू, फैन दैट फ्लेम ऑफ द होली स्पिरिट that is within you. That's what Apostle Paul writes for Timothy. And Paul the Apostle तिमोथी को अप्रिशिएट करता है और तिमोथियस को पेश करता है हमारे आगे
कि ये जवान प्रभु के लिए जीता है, ये जवान प्रभु के काम में दिन रात लगा है, ये जवान के अंदर ऐसी तीव्र अभिलाषा है यीशु मसीह के लिए पवित्र जीवन जीने की, कॉन्सिक्रेटेड लाइफ जीने की और दूसरों के लिए नमूना बनने की, कि ये अपने जीवन के नमूने के द्वारा रूहों को प्रभु के लिए जीते। तो प्रेरित पौलुस मिसाल देता है कि पहली मिसाल यीशु मसीह की देता है, अद्भुत मिसाल है, हालेलुया, कि ऐसा हमारा जीवन हो। फिर तिमोथियस के विषय में बताता है कि तिमोथियस भी यीशु मसीह के जीवन की नकल कर रहा है। उसके तुरंत बाद प्रेरित पौलुस किसका जिक्र करता है? एपाफ्रोडिटस का, हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 19 से 30 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, पॉल द अपोस्टल इज टॉकिंग अबाउट एपाफ्रोडिटस, another believer, another disciple of Jesus. He is from the church at Philippi. When Paul is in the jail, the church sends this dear brother with money, with things that Paul would need, maybe clothes, maybe other utilities, perhaps some food. वो सारा सामान पौलुस को लिए लेकर आता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। उसको भी जेल में डाला जा सकता था। और प्रेरित पौलुस लिखता है कि वो बीमार पड़ गया, दुर्गम यात्रा करते वो बीमार पड़ गया और यहाँ तक बीमार हुआ कि वो मरने वाला था। लेकिन मैंने प्रभु से विनती की, प्रार्थनाएं की प्रभु के आगे, और प्रभु ने उसके ऊपर दया की और उसको चंगा कर दिया। तो प्रेरित पौलुस दूसरी मिसाल कलीसिया को सिखाता है एपाफ्रोडिटस की, जो अपने जीवन की परवाह नहीं करता। आपको मालूम, मैंने आपको बताया था एक दिन यीशु मसीह किनसे प्यार करता है। मैंने आपको बताया था यीशु मसीह नफ्ताली से और ज़बूलून 2 गोत्रों से क्यों प्यार करता है। नफ्ताली, ज़बूलून और इस्साकार। लेकिन ज़बूलून और नफ्ताली से प्यार इसलिए करता है, मैंने आपको वचन में से दिखाया था, क्योंकि नफ्ताली और ज़बूलून के जो लोग हैं वो मनी से प्यार नहीं करते। किशेफ हिब्रू वर्ड है, किशेफ, सिल्वर। किशेफ का मतलब पैसा भी होता है। दे डिड नॉट लव मनी। और दूसरी बात, वो अपनी जानों को प्यारा नहीं समझते थे। वो अपनी जान को प्रभु के लिए लुटा देते थे, हालेलुया। जो अपनी जान को संभाल के रखता है, प्यारा करता है, वो खो देगा। जो अपनी जान को प्रभु के लिए वार देता है, वो अपनी जान को हासिल करेगा, हालेलुया। बहुत अरसा पहले मैंने साधु सुंदर सिंह जी की एक पुस्तक पढ़ी। साधु सुंदर सिंह जी तिब्बत में जा रहे थे बर्फ़ में, और उनके आगे आगे एक तिब्बतियन गाइड चल रहा था। वो एक जगह पहुंचना चाह रहे थे जहाँ पे एक घर बना था लकड़ी का, जहाँ उन्होंने विश्राम करना था। तो साधु सुंदर सिंह जी के गाइड ने उनको बोला, जल्दी जल्दी चलें, एक तूफ़ान के आने की सुगबुगाहट हो रही है। हवा चल रही थी कि तूफ़ान आ सकता है। तो साधु सुंदर सिंह जी जा रहे थे, चलते चलते वो गाइड आगे जा रहा था, वो पीछे जा रहे थे। उन्होंने देखा किसी बंदे का हाथ बर्फ़ के बाहर निकला हुआ है। तो साधु सुंदर सिंह जी वहाँ रुक गए। उनके गाइड ने पीछे देखा, उन्होंने कहा, अरे भाई ये काम मत करो, ये आदमी मर चुका होगा, इसको रहने दो, आप निकलो, वरना हम भी मर जाएंगे तूफ़ान में दब के। साधु सुंदर सिंह ने उस व्यक्ति की पल्स को देखा, पकड़ के नब्ज को देखा, उसके हाथ पे हाथ रखा, वो व्यक्ति जीवित था। तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, नहीं, मैं इस जीवित व्यक्ति को मौत के हवाले करके नहीं जाऊंगा। तो उस गाइड ने, तिब्बतियन गाइड ने बोला, मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं यहाँ से। साधु सुंदर सिंह जी ने क्या किया? साधु सुंदर सिंह जी ने उस व्यक्ति को निकाला, प्रभु से प्रार्थना की। वो बेहोश था, उस व्यक्ति को अपने कंधे पे रखा और साधु सुंदर सिंह जी धीरे 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 चलने लगे, धीरे धीरे चलने लगे। प्रभु उनके संग संग चल रहा था। और तूफ़ान आया, बहुत भयंकर ब्लिज़र्ड आया, स्नो ब्लिज़र्ड आया, तूफ़ान। लेकिन वो तूफ़ान साधु सुंदर सिंह जी के आगे आगे चल रहा था, 50 गज। साधु सुंदर सिंह के पास नहीं आया, आगे 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 चलता गया। तो जब साधु सुंदर सिंह जी आधा पौना घंटा चलते चलते आगे पहुँचे और उस घर के पास आए, तो उन्होंने आगे जाके देखा कि किसी एक इंसान का जूता बर्फ़ के बाहर है। तो तब तक इस व्यक्ति को होश आ गया जिसका जीवन साधु सुंदर सिंह जी ने बचा लिया था, और वो खड़ा हो गया। तो साधु सुंदर सिंह जी के संग मिलके उन दोनों ने उस व्यक्ति को बर्फ़ में से निकाला जिसका जूता बाहर दिख रहा था। साधु सुंदर सिंह जी हैरान हो गए
ये व्यक्ति वही था जो साधु सुंदर सिंह जी को छोड़ के आगे भाग गया था। तूफान में फंस के वो मर गया। जब उसको उन्होंने देखा, उसकी पल्स देखी, हार्ट देखा, वो मर चुका था। तो साधु सुंदर सिंह जी लिखते हैं कि उसी समय मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने अपनी आंखें ऊपर की ओर, आसमान की ओर उठाकर देखा तो आसमान में मानो ऐसे लिखा हुआ था, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो मेरे लिए अपना प्राण खो देगा वो उसे बचा लेगा। हालेलुया। जीसस लव्स पीपल who will squander their lives on him, and Jesus loves people who do not love money. हालेलुया। तो प्रभु बताता है, एपाफ्रोडिटस एक ऐसी मिसाल है जो अपने जीवन से प्यार नहीं करता है, प्रभु के दास के लिए अपना जीवन वारना चाहता है। ये मिसालें हैं। फिर प्रेरित पौलुस, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो फिर प्रेरित पौलुस अपने जीवन की बात करता है कि मेरा जीवन कैसा है, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन प्रभु के लिए मिसाल बने। और फिर प्रेरित पौलुस क्या बताता है फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय के 10 से 23 वचन में कि मैंने दुखों में भी रहना सीख लिया है, मुसीबतों में भी रहना सीख लिया है, मैंने बढ़ती में भी रहना सीखा है, मैंने घटती में भी रहना सीखा है। मैं प्रभु यीशु मसीह के दुखों में भागी बनना चाहता हूँ। भाइयों और बहनों, ऐसा सुसमाचार पादरी लोग आपको नहीं सिखाएंगे। वो आपको विक्ट्री वाला सुसमाचार दिखाएंगे, विक्ट्री वाला, मिरेकल वाला, साइन वाला, वंडर वाला, ये मांगो मिलेगा, वो मांगो मिलेगा। ये है असली कलाम। समझ रहे हैं आप? ये सच्चा कलाम है। पढ़िए 4 अध्याय, ये पत्री आप पढ़िएगा, 4 अध्याय ध्यान से पढ़िएगा। प्रेरित पौलुस क्या कहता है, कैसा उसका जीवन है प्रेरित पौलुस का, किस तरह की जीवन शैली है इन परमेश्वर के भक्तों की। हालेलुया। प्रेरित पौलुस क्या कहता है कि मैं मसीह के दुखों में सहभागी होना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रेरित पौलुस 3 अध्याय में कहता है, आई हैव बीन क्रूसीफाइड विद क्राइस्ट। मैं मसीह के संग क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। आपको मालूम, बहुत से लोग यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा हुआ देखते हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस ने ऐसा नहीं देखा। प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा देखा और यीशु मसीह के संग अपने आप को भी क्रूस पे चढ़ा देखा। जब आप अपने आप को भी क्रूस पे चढ़ा देखते हैं, तब आप अपनी मुक्ति के संपूर्ण दर्शन करते हैं। प्रेरित पौलुस कहता है, आई हैव बीन क्रूसीफाइड विद क्राइस्ट। मैं मसीह के संग क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है, और जो जीवन मैं जी रहा हूँ ये मेरा नहीं है, मसीह मुझ में अपना जीवन जी रहा है। और ये जीवन मैं विश्वास से जी रहा हूँ उसके लिए जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। प्रेरित पौलुस पहले तिमोथियस की मिसाल देता है, फिर एपाफ्रोडिटस की मिसाल देता है, फिर अपनी मिसाल देता है। फिर प्रेरित पौलुस, अगर आप आखिरी सेक्शन पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पत्री में, फिर प्रेरित पौलुस कहता है फिलिप्पियों की कलीसिया को, तुम सब मसीह की मिसाल को, मसीह के नमूने को, मसीह रोल मॉडल होना चाहिए तुम्हारा। यीशु मसीह के जैसा जीवन जीना है। हालेलुया। मैं मसीह के दुखों का सहभागी बनना चाहता हूँ। मसीह के अगर दुखों में आप सहभागी नहीं, तो मसीह की महिमा में, मसीह के राज्य में, मसीह के मुकुट में, मसीह के क्राउन में, हालेलुया, आपकी सहभागिता नहीं है। हालेलुया। तो भाइयों और बहनों, फिलिप्पियों की पत्री को आप बार बार पढ़ के रटें। इसको रटने का मतलब ये नहीं तोते की तरह, रटने का मतलब मेमोराइज करें और देखें कितना अद्भुत है हमारा प्रेमी यीशु मसीह। हालेलुया। जो परमेश्वर है लेकिन फिर भी मानव बनता है, और पृथ्वी के ऊपर मानव हैं वो, उन्हें पता हम मानव हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को रब्बी कहलवाना चाहते हैं, पापा डैडी कहलवाना चाहते हैं, मेजर माइनर प्रॉफिट कहलवाना चाहते हैं, बड़े बड़े अपने नाम के आगे टाइटल लगवाना चाहते हैं, ओवर आर्चिंग बिशप, हिज होलीनेस रेवरेंड डॉक्टर, ये वो पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं। यीशु मसीह मनुष्य बन रहा है जो सृष्टि का रचनहारा परमेश्वर है। हालेलुया। ये है हमारा रोल मॉडल। अपने आप को खाली करना, दास का स्वरूप धारण करना और परमेश्वर की आज्ञा मानने में जुट जाना
और सलीब की मृत्यु तक परमेश्वर का वफादार रहना। जब ये प्रोसेस से आप गुजरेंगे फिर आपको परमेश्वर शिरोमणि करेगा। हालेलुया। लेकिन लोग पहले ही अपने आप को शिरोमणि करने लग पड़ते हैं, अपनी सेवकाई का, अपनी मिनिस्ट्री का पूरा ताम झाम दिखावा करके, मार्केटिंग करके अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं। प्रभु का वचन कहता है अपने आप को यहोवा परमेश्वर के हाथों के नीचे दीन कर दे। जब समय आएगा यहोवा तुझे शिरोमणि करेगा। तो भाई और बहनों, पढ़ें ये पत्रियाँ, देखें प्रभु यीशु मसीह का चेहरा, देखें परमेश्वर का राह, परमेश्वर का पथ, परमेश्वर की गति, देखें परमेश्वर का स्वभाव और ऐसा बने हम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। आमीन।